So today we are meeting here for the second lecture of our Sociology English Medium batch. So in the yesterday's lecture, which where actually we introduced about this topic or this subject, and we also discussed how we are going to move ahead in the next 4 to 5 months that we are going to prepare for sociology. So I am seeing many of the familiar faces, but a few faces are new. So I will just quickly browse through in yesterday's discussion for about 5 minutes, and then we will start with the topic today itself. So yesterday we discussed about the syllabus of sociology, in which we have seen how are the different topics that are distributed there and how we are going to prepare this topic, and we are going to use the integrated way of preparation. So paper 1, paper 2 को integrate करके we are going to study. In which, as we have mentioned, the fourth topic where in the syllabus thinkers part is mentioned. It is the most important topic from understanding the subject purpose. But उसको समझने के लिए, but we have to understand the social background or social reality of the European society in the 18th-19th century of that period. And इसीलिए ये जो टॉपिक है आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. After that, we also talked about the process that we are going to follow during the preparation, in which, as I have mentioned, that we are going to use PPTs come handwritten notes for the preparation in the classroom, which will also create a framework for you for your own notes preparation purpose, along with the study that you are going to do. So PPT is whiteboard, ये तो आपको साथ में मिलेगा, इसको हम लोग class notes बोलेंगे. Along with that, you will also get a printed material from the institution side. तो वो आपको पढ़ना है. That will be designed according to the syllabus. All the parts of the syllabus are mentioned there in the detailed manner. So you need not to worry to search through the different material. But still, we will go and follow the third part of our process, that is reference material. And for that purpose, I have already shared what different types of reference material you shall be going through. और उसमें भी हम लोगों ने priority देखा है. So I will suggest that IGNU shall be the material which you shall be trying to read as the primary material in the reference material. उसको पढ़ने के बाद in the paper 1 you can use a Ritzer का book. You can also use Herlumbus का book. In paper 2 also I have suggested B.K. Nangla का book. And a few more books that I have given in the list, which is also available on Telegram channel. SHIVAJI KALE Sociology is the name of Telegram channel. Along with that, I have also uploaded few question paper. I think 2016 to 2022 UPSC के Sociology optional paper 1, paper 2, both question papers are uploaded there. And I think I have suggested you to go through these question paper once, just to get a feel ki what is the demand of the sociology and optional subject. So ये process we are going to follow in our study, but along with that we have to also follow certain strategy during the preparation process. And उस strategy में पढ़ाई कैसे करेंगे? This is what we have discussed. So first उसमें से सबसे important चीज है, that is we have to attend all the lectures from the start to the beginning, because a lot of things will be connected to each other. For example, the things that we are going to discuss for few lectures here onward, which are related to the first topic of our syllabus, which is emergence of sociology as a separate discipline. But this topic, we will also try to understand how the society was there in the 19th century Europe, and also from 14th to 19th century of Europe. Now, this will also help us to understand when we will be talking about, let's say, Karl Marx as a thinker or Emil Durkheim as a thinker, because they are looking at the 19th century Europe. तो ये सोशल बैकग्राउंड हम लोगों को उस टॉपिक में उनका थ्योरी समझने के लिए हेल्प करेगा. Along with that, thinkers are connected to different part of the syllabus, and hence most of the part of the syllabus will be interconnected to each other, paper 1 to paper 2, topic to topic. And इसीलिए your flow of learning shall be also important. इसीलिए lectures you have to do in a very sincere manner. Along with that, we talked about lecture होने के बाद you shall be I will be suggesting you some material to read. जो प्रोसेस में बताया वो फॉलो करेंगे, एंड दैट यू शैल बी डूइंग आल्सो रिलीजियसली और कंटिन्यूअसली. और उसमें भी हम लोगों ने देखा कि बेसिक पैटर्न पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू गो टू द रेफरेंस मटेरियल, राइट? सो इट विल ईज
your process and also increase the speed of your preparation. Then उसके बाद आपको रिवीजन करना है. रिवीजन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो. I will say that you have to follow 3-step strategy of revision. First step is that you have to revise whatever you studied every day in the class. Reading it, revising it will help you. Along with that, you have to do the weekly revision. So whatever we read in the or study in the week period of time. तो शुरू में ठीक है, 2 लेक्चर हो गए 1-2 हफ्ते के लिए, और उसके बाद में थोड़े से लेक्चर बढ़ेंगे, and then you have to maintain that momentum. So reading and revising the all things that we have studied in the week makes a weekly revision वाला केस. Along with that, तीसरा भी आप चीज कर सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे टॉपिक बेस्ड रिवीजन. एक टॉपिक खत्म हो गया तो उसके बाद में हम लोग उसकी रिवीजन करेंगे. Now some topic will be छोटा टॉपिक which may take 1 or 2 lectures, but some topics are bigger which may take more than a week का टाइम पीरियड, एंड इसलिए टॉपिक बेस्ड रिवीजन भी आपको हेल्प करेगा. उसके बाद में हम लोगों ने रिवीजन के बाद में आंसर राइटिंग का बात किया था, बिकॉज दैट इज व्हाट द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू लुक एट यू इन द फॉर्म. आंसर के फॉर्म में आपकी तरफ एग्जामिनेशन देखेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग. उसके लिए फिर हम लोगों ने 2 बातें की थी. We divided our strategy on the basis of the year you are going to go for the examination. So some of the people are preparing for 2024 का attempt and some for 2025 का attempt. तो उसके लिए थोड़ा अलग अलग strategy बना. Those who are going for 2024 का attempt, they shall start doing the answer writing practice along with the class. Topic खत्म हो गया, revision करो, answer writing practice करो. But उसके लिए भी थोड़ा सा पीरियड हम लोगों ने बचा के रखा है, एंड दैट पीरियड इज दैट टिल द टाइम यू आर नॉट फिनिशिंग विद द थिंकर्स, यू शैल मोर फोकस ऑन रीडिंग एंड रिवाइजिंग द थिंग्स. एक बार थिंकर्स खत्म हो जाएंगे, ऑल द 6 दैट आर मेंशन्ड इन द पेपर 2 एंड +3 मेंशन्ड इन पेपर 2 एंड पेपर 1, तो उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग, बिकॉज योर आंसर विल बिकम मोर कंटेंट लेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल कंपैरिजन. ये सारा आप उसमें कर सकते हो. And after that, you have to follow topic by topic. एक topic खत्म हो गया, reading, revision, answer writing. This shall be your strategy to follow. Right? Those who are for 2025, I will suggest that you can follow this strategy also, but I will suggest more. Your more focus shall be on reading and understanding the subject. तो 2024 के लोगों के लिए टाइम क्रंच है, तो they might be reading one reference group only and they are moving for the next topic. But because you have a time, you can go for multiple reference material with respect to that topic. Try to increase your depth of understanding, because this is what is going to help you in the answer writing also. तो जो भी टाइम मिल रहा है उसको strategically हम लोग प्लान करेंगे, and that is how we will be using it. ठीक है? तो this is what these 3 things we have discussed. सिलेबस क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, प्रोसेस क्या फॉलो करना है, और स्ट्रेटेजी आप लोगों ने कैसा बनाना होना चाहिए. राइट? Now, today we are going to start with our first topic, and the name of the topic is, कौन बताएगा? Yes, modernity, social change, and emergence of sociology. ठीक है? Now, सिलेबस में ये टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया है. राइट? अगर आप देखोगे फर्स्ट टॉपिक में पार्ट ए इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब ये जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस फर्स्ट टॉपिक है अराउंड 30 to 40 मार्क्स ऑफ वेटेज इन योर पेपर. तो इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर 2022 का मतलब द लास्ट मेंस का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, उसमें आपको दिखेगा 40 मार्क्स का इसके टॉपिक के ऊपर पूछा है. तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सोशियोलॉजी, 10 मार्कर्स एंड 20 मार्कर्स. देखा है ना क्वेश्चन पेपर? अरे सच में देखा है? हाउ यूपीएससी की कसम. ठीक है, जो तो यूपीएससी की कसम नहीं खाते फिर बहुत पंगा हो जाता है. राइट? नाउ तो इसीलिए मैं जो चीज आपको बोलूंगा कि डू दिस थिंग्स एट योर होम, डू दैट थिंग्स एट योर होम, बिकॉज समथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसका आपका बैकग्राउंड में आपको बनाने के लिए घर पे बोल रहा हूँ. इफ यू डू दैट थिंग, इट विल डेफिनेटली स्पीड अप योर प्रोसेस. राइट? तो हम लोगों ने देखा कि मेंस में in the optional paper you will have 2 types of question, 10 markers which you have to write in 150 words, 20 markers which you have to write about 250 to 300 words में आपको उसको लिखना है, और उसके कॉम्बिनेशंस हो गए. एंड इसलिए
यू विल फाइंड आउट दैट 2022 में इसके ऊपर अराउंड 40 मार्क्स का वेटेज है, 2021 में इसके ऊपर 30 मार्क्स का वेटेज है। बट इसको भी अगर हम लोग सब डिवाइड करते हैं तो वी विल फाइंड आउट दैट ए बी सी पार्ट जो है उसमें जो ए पार्ट है उसके ऊपर जनरली यूपीएससी हैज आस्क्ड 10 मार्क का क्वेश्चन इन एवरी ईयर्स क्वेश्चन। कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपको एक 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। राइट नाउ अभी आप सोच रहे होंगे कि पहले ही लेक्चर है और आप मार्क्स की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। राइट, तो बहुत ही सिंसियरिटी से पढ़ेंगे। क्लास में हंसी मजाक का माहौल रहेगा, बट उसका पर्पज यही होगा कि आप 2 घंटे तक बैठ जाओ। राइट, क्योंकि आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंसंट्रेशन करना, बट दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिंसियरिटी में कमी नहीं होनी चाहिए, एंड हमारा हमेशा वी हैव टू कीप एन आई ऑन द एग्जामिनेशन। इसके लिए क्या चाहिए वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 10 मार्क्स का इसके ऊपर वेटेज है डायरेक्ट वाला, बट मैंने जैसे आपको बताया इनडायरेक्टली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द सोशल बैकग्राउंड और सोशल रियलिटी और सोसाइटी हाउ इट वाज इन द 19th सेंचुरी यूरोप। और जो 19th सेंचुरी यूरोप में जो सोसाइटी बना वो क्यों बना उसके रिलेटेड हम लोग आज चर्चा करेंगे, एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द टॉपिक इज मॉडर्निटी, सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। राइट, नाउ इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर, जब तक मैं आपको बोलूंगा ये टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है तब तक डोंट ट्राई टू मेक एनी नोट्स और समथिंग। आई विल प्रोवाइड यू दीज नोट्स आल्सो, बट गिव मोर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग। साथ में आप रनिंग नोट्स निकाल सकते हो, बट मोर फोकस शैल बी ऑन लिसनिंग टू इट, लर्निंग अबाउट इट, क्योंकि बाद में आपको हैंड रिटन नोट्स बहुत सारे बनाने हैं व्हेन यू विल स्टार्ट विद द थिंकर्स पार्ट। तो तब साइमल्टेनियसली दोनों चीज करेंगे। अभी थोड़ा सा आराम से थोड़ा सा सुन के समझ लेंगे। राइट, यहाँ पे जो नाम उन्होंने दिया है टॉपिक का उसको हम लोग थोड़ा सा उसका रीशफल कर देते, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो पहले सोशल चेंजेस आए जिसकी वजह से मॉडर्निटी आया, और फिर सोसाइटी एज ए डिसिप्लिन यहाँ पे बन गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा देखो इसको रीशफल कर दिया। पहले सोशल चेंजेस की बात करेंगे, फिर मॉडर्निटी की बात करेंगे, फिर उसकी वजह से सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट या डिसिप्लिन कैसे उभर के आया उसकी बात करेंगे। बट अगेन उसके पहले, बिकॉज आवर सिलेबस इज डिमांडिंग यूपीएससी का अपना ये यूरोप का अंडरस्टैंडिंग, बट व्हाट वी विल डू हियर दैट वी विल ट्राई टू टेक एग्जांपल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस। तो इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल लेंगे, फिर उसको साइमल्टेनियसली यूरोपियन सोसाइटी के एग्जांपल के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट, तो उसके लिए सबके लिए आपको एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, सो टेल मी today's India, contemporary Indian society, what type of political system do we have? कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में है अभी? डेमोक्रेसी, राइट, एवरीबॉडी एग्रीज। नाउ अभी क्या आप ये सोच सकते हो कि ये जो डेमोक्रेसी इंडिया में आज एग्जिस्ट करता है, ये डेमोक्रेसी हम लोग इसको मॉडर्न डेमोक्रेसी बोलते हैं, isn't it? Now tell me how this democracy became a political system in India, because in the 18th century, till the 18th century, we have monarchy in our country, है कि नहीं? राजेशाही राजकीय पद्धति इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। फिर मुगल होंगे, मराठा होंगे, या उसके पहले पहले आप पुराने जमाने तक जाओगे तो मौर्य एम्पायर हुआ करता था, गुप्ता एम्पायर हुआ करता था। तो हम लोग ये बोलते हैं कि वी आर सीन इन द टुडेज कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी व्हाट इज कॉल्ड एज मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो ये मॉडर्निटी का एग्जांपल है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि इंडिया में डेमोक्रेसी का कंसेप्ट था नहीं। इंडिया में डेमोक्रेसी का कंसेप्ट बहुत पहले से था, बिकॉज यू पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट जनपद, महाजनपद इन द एंशिएंट इंडियन पीरियड ऑफ टाइम, ये था। तो ये कंसेप्ट इंडिया में एग्जिस्ट करता था, लेकिन बीच का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम ड्यूरिंग स्पेशली मेडिवल हिस्ट्री और थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, इसमें वी फाउंड आउट दैट कि मोनार्की वाज द प्राइमरीली एग्जिस्टिंग एज अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो हाउ दिस मोनार्की चेंज्ड इनटू डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम, कैन एनीबॉडी टेल मी कैसे चेंज हुआ?
Yes. इंडिया में रिवॉल्यूशन हुआ बिकॉज एवरी वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग, राइट? तो उसको शब्द संभारे बोलिए. British introduced modern democracy to India. कैसे? Because when they came to India, initially they came as a trader, but later on they become a political power. तो पहले जब उन्होंने पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करना चाहा या एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया, इट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट वाज रूलिंग इंडिया. बट 1857 में रिवोल्ट हुआ एंड देन ब्रिटिश क्वीन टुक ओवर द इंडियन assets whatever are there, and she became the emperor or empress of India, right? So that was the act of 1858, right? उसके बाद में there were several regulating act, charter act. उसकी वजह से they started developing legislative council, ये वो बनाना शुरू कर दिया. They started taking few Indians into the administrative process. पहले सिर्फ सिलेक्शन से करते थे. बाद में 1909 का एक्ट आया जिसकी वजह से और थोड़ा इंडियंस को अथॉरिटी उन्होंने दे दिया. उसके बाद में 1919 का एक्ट आया, फिर 1935 का एक्ट आया, ग्रेजुअली 1947 का एक्ट आया जिसमें उन्होंने बोल दिया कि यू शैल रूल ओवर योर ओन कंट्री. तो ग्रेजुअली दे इंट्रोड्यूस्ड डेमोक्रेटिक सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप टू इंडिया. अलॉन्ग विद दैट दे आल्सो एजुकेटेड इंडियंस इनटू दिस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप. तो जो हमारा नेशनल मूवमेंट भी हुआ, तो द टॉप ब्रास ऑफ इंडियन पॉलिटिकल, जो टॉप पॉलिटिकल क्लास था हमारा, दे गॉट एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, दे लर्न अबाउट दिस थिंग. बट दिस नेशनल मूवमेंट वेर एबल टू teach or make the masses aware about all their political rights that are there. For an example, जब गांधी जी ने बोला कि he did the salt सत्याग्रह, तो उन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि this is your land, all the resources belong here, belonging to this land belongs to you because you are the owner of the land. ये कंसेप्ट उन्होंने लोगों को बताया कि ये तुम्हारी चीज है, तुम स्वराज हो, तुम स्वराज बना सकते हो. तो पॉलिटिकल एजुकेशन स्टार्टेड विद द नेशनल मूवमेंट. और ग्रेजुअली जब 1947 आया, उस टाइम पे पीपल वेर क्वाइट अवेयर अबाउट देयर ओन राइट्स. इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे तो बिफोर इवन गेटिंग द इंडिपेंडेंस वी ऑलरेडी स्टार्टेड विद फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इजंट इट? 1946 में ही काम शुरू हो गया था. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठबंधन भी हो गया था, वहां पे लोग आते भी थे, वो काम भी शुरू कर रहे थे. एंड देन वी formally announced that we had a constitution. 1950s में हम लोगों ने अनाउंस किया. एंड अभी अराउंड मोर देन 75 years has passed. अमृत काल महोत्सव चल रहा है ना. 75 years has already passed and we have a very healthy democracy in India, right? तो आप बोलोगे हेल्दी क्या? देख लो सर महाराष्ट्र स्टेट पॉलिटिक्स क्या चल रहा है. But that is also a kind of a healthy democracy का example. If you compare it to the different parts of the world, where after the World War, a lot of countries got an independence, but they were even not able to make the constitution, और जब भी बना वो चला नहीं, दो देश के टुकड़े हो गए. lot of countries got balkanized, but India में सारा नहीं हुआ. उल्टा democracy got more and more penetrated into the society. जैसे कि हम लोग देखते 73rd, 74th amendment आए कुछ सालों के बाद, which we diluted the democracy to the grassroots level. Local self government बनी, पंचायत राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. आगे जाके हम लोगों को देखा कि even the people's participation into government started increasing. Government started giving importance to pressure groups and interest groups, also giving importance to different political party, right? तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर का जो फार्म प्रोटेस्ट हुआ था, so you can take that example ki how mature Indian democracy is, irrespective of whatever government decision is, bill bhi pass ho gaya, act bhi ban gaya, but just because people are protesting against the government ne usko वापस लिया. This is an example of modern democracy. समझ रहे हो? तो ये इंडिया में हुआ. तो we can say that इंडिया में social changes हुए. कब हुए इंडिया में social changes? We have taken an example कि 1857 से लेके 1947 तक lot of political changes started happening in India, and because of which we found out that India में political democracy जो modern form है वो हम लोगों को exist करता हुआ दिख रहा है.
तो अंडरस्टूड दैट पहले सोशल चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ विच मॉडर्निटी बिकम्स अ रियलिटी. सो मॉडर्निटी इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सोशल चेंज. अंडरस्टूड. इसलिए हम लोग सोशल चेंज पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करें. Now apply the same logic that we understood with the Indian example to Europe. बस सिर्फ घटनाएं अलग हैं, टाइम पीरियड थोड़ा बहुत इधर उधर है, बट लॉजिक विल रिमेन सेम. और लॉजिक क्या है? तो यूरोप में भी मॉडर्निटी आया आफ्टर लॉट ऑफ सोशल चेंज दैट हैज हैपेंड. उनका टाइम पीरियड है. दिस सोशल चेंज स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम द 14th century onward. ना 14th century ही क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे बिफोर 14th century का जो टाइम पीरियड है उसको यूरोप का क्या बोला जाता है? डार्क एज बोला जाता है. वो डार्क एज क्यों है उसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे. बट फ्रॉम 14th century डिफरेंट चेंजेस स्टार्टेड हैपनिंग इन द सोसाइटी. तो ये क्या क्या चेंजेस है इसका एक जस्ट आपको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करके दिया है. आप उसके नाम पढ़ सकते हो, पढ़ लो एक बार क्या क्या है. ठीक है. तो रेनेसांस लिखा है, रिफॉर्मेशन लिखा है, एनलाइटनमेंट लिखा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. So these are actually the different historical events, important events that happened in Europe. But अगर आप अभी सोचो आपके यूपीएससी में आप जा रहे हो 24-25 में एग्जाम लिखने में और यू हैव अ क्वेश्चन. लेट्स formulate a very simple question for you people. Discuss the historical changes in Europe during 14th to 18th century and how it has resulted into emergence of sociology. क्वेश्चन मार्क 10 मार्क्स आपको लिखने के लिए बोले. तो ऑब्वियसली यही 4-5 पॉइंट हम लोग वहां पे लिखेंगे और उसका कॉन्सिक्वेंस कैसे हुआ ये लिखेंगे. बट ये तो सभी लोग लिखेंगे. अरे लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें सिंपल लॉजिक. अगर कोई मेंस देने जा रहा है तो वी कैन अज्यूम दैट कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया है, और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया वो पहला चैप्टर तो पढ़ के ही गया हो. और ये तो बहुत सिंपल चीज है. नाउ वी अंडरस्टूड कि उसने ये पढ़ा है, so that person candidate is also going to write these points in his or her answer. Then हमको थोड़ा सा अलग कर. Then again अलग करना है मतलब गलत करना तो नहीं होगा, क्योंकि इससे मार्क्स नहीं आएंगे. तो अलग करना है मतलब क्या है? We need to bring more sociology into it. Now how can we bring more sociology into it? By bringing sociological scholar, sociological commentator, sociology के बारे में लिखने वाले, case studies, उसके कंसेप्ट, उसके थियरीज, ये चीजें अगर जब हम सोशियोलॉजी में आंसर में लेके आएंगे, दैट आंसर विल मोर लुक लाइक अ सोशियोलॉजी आंसर रादर देन अ जनरल स्टडी का आंसर. एंड दैट इज वेयर द क्वालिटेटिव डिफरेंस विल हैपन इन योर मार्क्स. ना इसका सिंपल लेते, इसी चीज को ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे, सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू राइट इट इन दिस फॉर्म दैट the changes happened during 14th to 18th century Europe was studied by M. Francis Abraham and categorized into two cases where some intellectual factors resulted into 1, 2, 3, 4 changes and material factor resulted into industrial revolution. Same चीज लिखा है कि मैंने. Now you people, suppose you people are एग्जामिनर और इवेल्युएटर ऑफ द आंसर. आप सब लोग इवेल्युएटर हो अभी के लिए, और आपके सामने दो कैंडिडेट आए हैं, दो आंसर्स आए हैं. पहला जो आंसर है उन्होंने ये वाला इंफॉर्मेशन लिखा है, वही इंफॉर्मेशन दूसरे कैंडिडेट ने थोड़ा सा ऐसे करके लिखा है. नाउ यू पीपल टेल मी, आप किसको ज्यादा मार्क्स दोगे? ठीक है. सो नथिंग रॉकेट साइंस हियर कि इवेल्युएटर कैसे इवेल्युएशन करता है. तो ही इज ट्राइंग टू लुक कंटेंट कैसे लिखा है. सोशियोलॉजी का पेपर लिख रहे हो तो क्या उसमें सोशियोलॉजी आप लिख सकते हो. दैट इज व्हाट हिज ऑब्जेक्टिव विल बी. तो डिमांड क्वेश्चन की सेटिस्फाई हुए, उसके बाद में जो कंटेंट लिखा है उसका क्वालिटी विल डिफाइन योर मार्क्स. एंड दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस फ्रॉम द डे वन. तो जहां जहां पे भी पढ़ाई करेंगे वी विल ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स. अभी मैंने एम फ्रांसिस बता दिया. नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? That when you will be reading with the different material that I have suggested, there will be few more explanations to this particular angle. Now in your notes you will add certain points here. तो आपके पास एम
फ्रांसिस अब्राहम साहब का भी एक्सप्लेनेशन है, and you will also have some more points with you. Now you will decide which point to use in your answer when you have thoroughly prepared that topic. So always have few more arrows in your kitty. Which arrow you have to select and shoot, you can decide during the test series that you are going to practice after some time. Right? Understood? तो अभी ये जो सारे आपके सामने पॉइंट लिखे हैं, रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्या है, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कशन के लिए ले लेते हैं. तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, रेनेसांस. नाउ रेनेसांस का मतलब क्या है? इन हिंदी और मराठी इट इज जागरण. जागरण का मतलब समझते? एनीबडी हियर हु डू नॉट अंडरस्टैंड मराठी? है कोई यहाँ जिसको मराठी नहीं है? सबको आती है? हाँ, तो सबको पता होगा जागरण गोंधळ सुना है. It's a kind of a religious practice that generally happens around. तो क्यों करते हैं? तो क्या करते? जागरण गोंधळात क्या करतात? देवीला जागवतात. देवी झोपली आहे, तिला जागवतात. दिस इज अ बेसिक कन्सेप्ट. नो सेम थिंग इज हॅपनिंग इन युरोप. तिथे देवी नाही आहे. They are trying to wake up the society that was sleeping. European society means they are trying to talk about the new birth of the society or rebirth of the same society. The society can't takte. It is going to change now from the older version to new version. Now ये older version क्या था? तो उसमें जो था, religion was trying to cover all aspects of human society, human behavior, human society. Now इसमें इसके ऊपर चेंज होने वाला है, and that's why this change was primarily a cultural change, and इसीलिए Renaissance period is considered as a cultural new birth of European society. Now ये कैसे हुआ, ये थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, right? And for that purpose, we will take an example to understand. So again, let's take an example of Indian society to understand this topic. Okay? तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं. लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग मेडिवल टाइम पीरियड और उसके थोड़ा सा पीछे. तो एट दैट टाइम इंडिया वाज लुकिंग लाइक दिस. बोलेगा ऐसा कैसा इंडिया निकला है? तो दिस इज एन यूनाइटेड इंडिया दैट वाज एग्जिस्टिंग अर्लियर. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये सब हुआ नहीं करता था बाद में. यूनाइटेड इंडिया. क्योंकि अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट देयर वर सेवरल एम्पायर्स दैट वर स्प्रेड लाइक दिस. है कि नहीं? मौर्यन एम्पायर या गुप्ता एम्पायर, या बाद में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट औरंगजेब का एम्पायर, मुगल एम्पायर वाज स्प्रेड लाइक दिस. राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट टाइम इंडिया. राइट? Now try to think about कि there is going to be one emperor who is ruling over this particular land, right? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ले लो या कोई भी एक emperor ले लो. So that person will be settled in at its own capital, right? तो फॉर एग्जाम्पल अगर पुराने जमाने की बात करते तो पाटलिपुत्र में होगा कैपिटल. अरे नाम सुना होगा ना? पाटली बोला है, बाटली नहीं बोला है. पाटलिपुत्र नाम सुना है? ठीक है. या फिर अगर आपको मिडिवल पीरियड का टाइम लेना है आफ्टर दिल्ली सल्तनत वाला, तो आप देखोगे दिल्ली बिकेम द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे भी एग्जांपल ले सकते हो. बट लेट्स टेक एनी एग्जांपल. पॉइंट इज दैट इफ दैट एम्पायर इज सिटिंग इन इट्स ओन कैपिटल and is having a vast landmass as its empire, can that person alone administer this vast territory? Not possible, ना? Because it is very difficult. क्योंकि लैंड मास बहुत ज्यादा है और टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं है. तो अगर उसके किसी एक कोने में अगर कुछ चीज चल रही है तो उसको कैसे समझेंगे? Nowadays it is very easy, ना? Suppose somebody is happening at our border, the soldier will simply call कि साहब बम फट गया. You will get the information in a minute. तो यहाँ पे बैठने दिल्ली में आवर पॉलिटिकल लेट्स से लीडरशिप में टेक अ डिसीजन कि बटन दबा सकते नहीं क्या? वो बीच में लोग एक दूसरे को डरा रहे थे ना. दैट नॉर्थ कोरियन वाला पर्सन वो बोला था मेरे पास बटन है. फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बोले मेरे पास बड़ा बटन है. फिर बैठो दबाते. ठीक है. बट ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इन टूडेज टाइम. बट उस जमाने की आप बात करो ना, अगर वो कहाँ पे कुछ हो जाता है तो इवन दैट एम्पायर विल get that information after a month or so, क्योंकि इंसान आएगा वो मैसेज लेके जाएगा.
उसको कुछ एक्शन लेनी है, उसको अपने आर्मी को बुलाए तो आर्मी इकट्ठा होने में 2 महीने लगेंगे, फिर वो जाएगा तो 6 महीने तो पास हो गए, तो इशू भी प्रॉब्लम। इसलिए उन्होंने क्या किया था, he had his own representative at certain place, so he divided his empire into what, different provinces, right? now किसको बनाया उसने एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे, जो भी उस टाइम की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैमिलीज थी, राइट? तो उसको अलग अलग नाम से अलग अलग टाइम पे जाना गया। किसी ने बोला ये जहागीरदार है, या लेट से वतनदार है, किसी ने बोला राजा है, राजाओं के राजा महाराज मतलब सम्राट हो गए, राइट? तो this emperor divided his all empire into different छोटा provinces, and he appointed his own people into this region. Let's say they become raja of this place, and he become राजाओं का राजा महाराजा, right? But because these jagirdars or maharajas, they are appointed by, or they are following under the leadership of this Maharaj, there was a kind of an understanding between them, give and take between them. क्या? तो emperor ने क्या दिया? They have given you political power to rule a part of your territory, isn't it? और उसने क्या दिया? आपको जुडिशियल पावर भी दे दी कि अगर कोई आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, तो यू आर ऑल्सो जुडिशियल पर्सन। आप टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हो लोगों से, ये सारा एम्परर ने उसको अथॉरिटी दे दिया। बट उसके बदले में what that person or a family or that aristocrat has to promise, तो वो प्रॉमिस करता है कि I will always keep myself politically subjugated to emperor। तो अगर मैं मेरे एरिया में राजा हूं बट आप महाराजा, तो आपका आदेश फाइनल रहेगा। उसके साथ साथ जो टैक्स में कलेक्ट कर रहा हूं उसमें से थोड़ा मैं अपने लिए रखूंगा, बट बाकी का सारा टैक्स आई विल गोइंग टू सेंड इट टू द एम्परर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। I will be also holding small army to maintain law and order in my territory, but this army is at the final disposal of the emperor. So whenever emperor will ask me to bring that army, I will go and try to protect my empire. क्योंकि कैसे? ऐसे आप समझो ना, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में किसी ने अटैक कर दिया, इन्वेजन आ गया इसकी तरफ से, तो ये जो बंदा है ये क्या बोलेगा, मेरा क्या संबंध है भाई से, तुम तुम्हारा युद्ध लड़ो। बट नहीं, वो ऐसे नहीं बोल सकता, बिकॉज दिस बिलोंग टू द सेम एम्पायर। तो एम्पायर विल सेंड एन ऑर्डर एंड दिस पर्सन विथ हिज ओन आर्मी हैज टू गो टू दिस पार्ट एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट द किंगडम। तो ये गिव एंड टेक है, एक दूसरे के बीच में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, दैट आई विल गिव यू समथिंग, यू हैव टू प्रॉमिस मी समथिंग। ये पॉलिटिकल अलायंसेस रखने के लिए दे आल्सो डिड लॉट ऑफ मैरिज अलायंसेस भी उन्होंने किए। तो आपको हमेशा दिखेगा इन द पॉलिटिकल case, you will find out that political alliances are generally converted into marriage alliances so as to keep their political supremacy. इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर आपने सुना होगा, अकबर एंड जोधा। अरे सुना है ना? तो क्यों किया भाई अकबर ने जोधा बाई से शादी? एक बार मैंने क्लास में यही क्वेश्चन पूछ लिया, किसी ने बोल दिया सर जोधा बाई बहुत सुंदर थी। इट्स ऑब्वियस थिंग, वो एक राजकुमारी थी तो सुंदर तो वो होगी, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन ना। To try to understand. सिंपल आप देखो, अगर आप देखोगे तो राजपुताना, जिसको पुराना बोलते, जो आज राजस्थान नाम का स्टेट उस एरिया में हम लोग देखते, तो ये जो राजपुताना था, यहाँ पे राजपूत लोग राज करा करते थे, राइट? Few families of Rajputs they used to be ruling it. Now that is located in such a area from where generally India has experienced several invasions. तो जब भी इन्वेजन होता था उसी एरिया में से होता था, and Rajput were the first to react to that invasion. Now whoever is ruling India, अगर उनकी राजपूत लोगों से बनती है तो these Rajput will stand as a guard to their empire. अगर नहीं बनती है, that Rajput will try to use that as an opportunity and try to fight with the local or that emperor who is there. So it was always beneficial and it is also a martial race. तो लड़ाई करने वाले लोग, लड़वैया लोग बहुत निष्णात होते हैं लड़ाई में, and that's why Mughal emperor always tried to keep Rajput very close to them. इसका और एक एग्जांपल, अगर आप लोगों ने शिवाजी महाराज का हिस्ट्री पढ़ा है, तो जब शिवाजी महाराज पे मिर्जा राजे जयसिंह चल के आए थे, राइट, तो ही ब्रॉट बिग आर्मी विथ हिम, तो उनको पद भी देखो क्या दिया है, मिर्जा राजे जयसिंह।
तो राजा उनको पदवी दिया है, तो वो राजा ही थे, उनके एरिया के वो राजा थे, बट उन्होंने सम्राट का क्या मान लिया था, दायित्व मान लिया। बट उनका पोजीशन आप देखो, इतना बड़ा आर्मी लेके आ रहे, इतना उनका बड़ा पोजीशन है। That's why you will find out marriage alliance and important leadership. These are the things that emperor used to use to keep his empire strong. तो उसको पता है, at any point of time, if my empire or my position becomes weaker, any one of them will try to overpower me and try to replace me. अगर replace भी नहीं करेंगे, then it may happen that these छोटा political units, they may try to create their own autonomy within their own region. कैसे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अर्लियर केस में क्या होता था, सपोज यहां से यहां पे क्या चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, राइट? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रेड चल रहा है ना। ये जब एम्पायर स्ट्रांग है तो एम्पायर में एक ही रूल होगा, नाउ दिस ट्रेड विल बी वेरी वेरी इजी फॉर दैट ट्रेडिंग कम्युनिटी टू डू। बट अगर आप ऐसे सोचो कि एम्पायर वीक हो गया, Now what will start happening? Now ये जो बंदा है वो बोलेगा कि आप मेरे एरिया में से जा रहे हो तो मुझे टैक्स दे दो। ये बंदा बोलेगा मेरे एरिया से भी जा रहे हो, ये बंदा बोलेगा मेरे एरिया में बेच रहे हो ना तो मुझे टैक्स दो, टैक्स एट डेस्टिनेशन, वहां से आया राइट? या ये बंदा बोलेगा अरे तुम तो मेरे यहाँ पे बना रहे हो, मेरे नेचुरल रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, तो तू टैक्स मुझे देना चाहिए। देन व्हाट विल हैपन? दैट पर्सन हु इज ट्रेडिंग एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, उसको 4 जगह पे टैक्स देना पड़ेगा। या ऐसे भी हो सकता है, कोई बोलेगा कि तू इस एरिया का ट्रेडर है तो मैं तुझे यहाँ पे आने के बाद लूट लेता हूँ, तूने लास्ट टाइम मेरा टैक्स नहीं दिया। तो ट्रेड विल बिकम अ डिफिकल्ट एक्टिविटी बिकॉज एवरीबडी विल ट्राई टू मेंटेन देयर ओन पोजीशन, हेगेमनी, एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे अपना टेरिटरी बनाने के लिए, एंड देन पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी विल बी देयर। नाउ ऐसे सिचुएशन जब होगा, बिकॉज वी स्टार्टेड विथ टॉकिंग रिलेटेड टू any particular product or commodity का trade, but try to think about it, जब भी इंसान यहाँ एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो वो सिर्फ अपने साथ चीजें नहीं लेके जाता, that person is also carrying his own ideas with him, his own culture with him, his language with him, and that's why there is not only trade of things there is also a trade or movement of culture from one place to another place. अब इस चीज में क्या हो गया, बिकॉज एम्पायर वीक हो गया है, इसमें क्या हो जाएगा, हर चीज अपना अपना ऑटोनॉमी क्रिएट करने का बात करेगा ना। ये जो ट्रेडर है वो बोलेगा कि जाने तो मैं अपने अपने एरिया में ट्रेड करता हूँ, बाहर क्यों चला गया। तो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, मूवमेंट ऑफ आइडियाज, कल्चर, सारा चीज रुक गया, सोसाइटी बिकेम स्टेग्नेंट। दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और इस आप बोलोगे कि कैसे कल्चर कैसे जाता है लोगों के साथ से, तो उसके कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। Now let me ask you people a question. Do you know where Hindus' biggest temple is? पुराना वाला, कंबोडिया में, क्या नाम है, अंगुरवट नाम का एक टेम्पल है। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है वो क्या करेंगे। 10 मिनट टॉपिक का कंसेप्ट पता है? अरे पता है, नहीं पता है, सबको पता है। जिसको नहीं पता है उसको नहीं जानना है, जानना है, हाँ फिर पूछो ना। हाँ हाँ बता, ठीक है। तो ये सब बोलना पड़ेगा भाई, तभी शेर आए। ओके, अरे वो वाला अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो बता दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बिकॉज नाउ यू आर स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, you will come across several things. Many of the time it may happen that you do not know about it. You have heard it somewhere, but you do not know what exactly it is, but you feel that this is connected to our part of syllabus. तो उसका हम लोग नोट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे कंबोडिया हिंदू टेम्पल अंगूरवटी, लिख के रखना, बिकॉज अभी तो लेक्चर चल रहा है, अभी आप इमीडिएटली उसको नहीं सर्च कर सकते, लिंक टूट जाएगा, बट उसको लिख के रखना। एंड दिन में अगर आपके सामने ऐसे 5, 6, 7, 8 चीजें आई जिसको आपने नोट डाउन किया है, तो एट द एंड ऑफ द डे टेक आउट सम टाइम एंड गिव 10 मिनट्स टू ईच टॉपिक। तो 5 मिनट उसमें से पढ़ना उसके बारे में, एंड इफ यू फील दैट यस इट कैन बी कनेक्टेड टू अदर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, टू मेक अ नोट आउट ऑफ इट। और नोट बनाना मतलब 4-5 पॉइंट का, राइट? उसको आप कैसे भी बना सकते हो, एक बुक बना सकते हो उसके लिए, या सिंपल है आप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी यूजिंग मोबाइल फोन टू सर्च अबाउट इट। एक मोबाइल फोन पे एक नोट बना दिया, उसमें ये सारी चीजें 1, 2, 3, 4 कॉपी पेस्ट कर ली और उसका इंफॉर्मेशन भी लिखा। नाउ दिस यू कैन रीड जनरली व्हेनेवर यू हैव टाइम।
तो 15-20 दिन हो गए, एक बार सारा चीज 1-2 बार उसमें से देख लिया, उसमें कुछ रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं रखना है, जस्ट यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग इट। बिलीव मी, 1-2-3 बार पढ़ने के बाद यू विल ऑल्सो रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दैट। एंड व्हाट विल हैपन, अगर आप एवरेज भी लगा लोगे, तो अगर आप दिन में 5-6 चीजें ऐसी नई नई पढ़ते हो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर you are going to learn more than 2000 things that you are not knowing earlier. तो 2000 चीजों से आप स्मार्ट बन गए, अवेयर बन गए, एंड बिलीव मी दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर एग्जामिनेशन। आप ऐसे में बड़ी बढ़िया चीज उसमें डाल सकते हो। मे बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीलिम you can use your calculated guess technique to come to an answer to this question, but ये एक दिन में नहीं होगा। This is a kind of a process that you have to practice every day. So this is a kind of a thing that you have to make ocean drop by drop. तो हर रोज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ये सुनने को सबको अच्छा लगता है, बट करने में बहुत डिफिकल्ट है, राइट? बट बिलीव मी, जो 1 साल ये चीज करेगा उसको इसका फायदा जरूर होगा। तो जिनको चाहिए वो उसमें ये चीज लिख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाई हिंदू टेम्पल इज देयर इन कंबोडिया, क्या रीजन है भाई? हिंदुइज्म इज इन इंडिया, ये ऐसा स्प्रेड भी नहीं हुआ अलग रिलीजन जैसे, तो कैसे वहां पे मंदिर बन गया? बिकॉज ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ इंडियन ट्रेडर क्रॉस बे ऑफ बंगाल एंड वेंट टू मलाया पेनिनसुला, थाईलैंड के रीजन में, एंड देन दे स्प्रेड अक्रॉस दैट पर्टिकुलर रीजन। So when they went there, they took their own language. तो इसलिए आपको दिखेगा उस रीजन में, आपको हांगकांग, सिंगापुर के यहाँ पे तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये लैंग्वेज भी आपको वहां पे दिखेगी। हिंदू पीपल यू विल फाइंड आउट देयर। और पुराने जमाने में तो एक बहुत बड़ा मंदिर भी वहां पे बना चुके हैं। बहुत सारी चीजें, आप अगर क्या आपने ब्रुनेई नाम का देश सुना है? इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री। उसकी कैपिटल का नाम पता है? उसकी कैपिटल का नाम है बंदर शेरी भगवान। अरे किसकी बात हो रही है? अरे अपने महाबली, क्या बोलते हैं, बजरंगबली की बात हो रही। बंदर शेरी भगवान, बंदर भगवान कौन है? महाबली, महाबली हनुमान। तो क्यों ऐसा उनका नाम वहां पे चला क्यों गया? अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया के एक आइलैंड का नाम है बाली। अरे वही है बाली जो सुग्रीव और बाली की स्टोरी है रामायण वाली। भाई भाई थे, उनका जम नहीं रहा था, तो हनुमान गए और वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसलिए उनका नाम वहां पे। तो you're understanding what I am trying to say? तो with people their culture also travel from one place to another place, और ये सोसाइटी का प्रोसेस है। बट ये कब स्टॉप होगा? when the movement of people will stop and the society will start becoming a stagnant society. Now in this type of stagnant society, now what has happened? Emperor has already become weak or non-existent. तो छोटे छोटे political unit बने। Now every political unit will try to make themselves a sovereign state. तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था पहले, वो खुद को राजा घोषित करने का कोशिश करेंगे। Now he has a money, army, political power भी उसके पास है, बस अभी उसको क्या चाहिए? लोगों का सहमति। Now people shall accept him as their sovereign ruler. तो लोगों का एक्सेप्टेंस आना चाहिए ना, उसके लिए दे एट दैट टाइम पीपल, these administrative rulers played a smart. They took religious institutions with them. तो उन्होंने क्या बोला कि रिलीजन को उन्होंने बोला आई विल गिव यू ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पावर, जो पॉलिटिकल पावर में शेयर करता हूं मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, बट यू हैव टू क्रिएट a background for me or a reasoning for me so that people will believe in me or trust me or will accept my authority. तो मैं बोल दिया, सिंपल कर देते, people believe in God, people are ready to follow God, whatever God's pronunciations are. So what we will do, we will make you a representative of God on this planet. तो क्या बन गया? राजा क्या बन गया? King became the face of God on this place, and that's why whatever king demands he shall get, because he is not demanding himself, because God cannot be everywhere. God has sent his representative for you people, you subjects, for you God has sent this person to rule over you. So whatever he is demanding or whatever he is ordering to you, commanding to you, is a command of God. और ये किन्होंने बोला? ये राजा ने नहीं बोला, किसने बोला? The religious gurus, preachers, they said it. People believed on it. And that's why these two become the political and religious centers of that way.
और ये जो इसको बोला जाता है डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप। तो किंगशिप ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइनिटी। तो डिवाइनिटी है उस इंसान में, ईश्वर का रूप है, इसीलिए लोग उसको फॉलो करने लगे। तो उसके साथ साथ क्या हो गया, तो सब सर्वेंटनेस लोगों में आ गया। सोसाइटी बिकेम स्लेव ऑफ दिस टू इंस्टीट्यूशन, बिकॉज कमांड भी सुनना है पॉलिटिक्स का, और आइडियाज के बिलीफ सिस्टम के ऊपर रिलीजन वाज ऑलरेडी ट्राइंग टू डोमिनेट, एंड देन सोसाइटी बिकेम द स्लेव ऑफ दीज टू थिंग्स, प्राइमरली रिलीजन, बिकॉज रिलीजन क्रिएटेड एन आर्ग्यूमेंट फॉर पॉलिटिकल क्लास। तो राजा को भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सुनना पड़ता है। ना आप बोलोगे ऐसे कैसे, कभी तो सर ने बोला था कि सोसाइटी तो बहुत ताकतवर होता है, सोसाइटी इज वेरी पावरफुल, हाउ कैन इट गेट सब्जुकेटेड अंडर एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस आइडियोलॉजी। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। बैल बघितलाय, म्हणजे खरा खरा बैल, म्हणजे तुम्हाला आई बैल म्हणते तो वाला। तो गांव में अगर आप जाके देखोगे तो बैल को एक छोटी सी इसके साथ बांधा होता है, त्याला कुंटी म्हणतात, राईट। तर ती कुंटी जर तुम्ही पण जोरात ओढली तरी निघून येईल, है की? आता यू पीपल हु आर अर्बनाइट, जिन्होंने बैल नहीं देखा उनके लिए एग्जांपल चेंज करते, क्योंकि आपके चेहरे बता रहे कि हम लोगों ने नहीं देखा। कोई बात नहीं, हाथी तो देखा होगा, अरे कभी तो देखा होगा हाथी, टीवी में तो देखा होगा भाई। लोग ऐसे बोल रहे, कोई बात नहीं, आई नो यू आर कॉस्मोपॉलिटन पीपल, बॉर्न इन न्यूयॉर्क एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट स्टिल ठीक है, आपने हाथी देखा होगा। तो उसके पैर में क्या बांधा होता है, चेन बांधा। क्यों बांधा होता है, क्योंकि कहीं भाग ना जाए, ज्यादा दौड़ेगा नहीं। बट यू जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट, ना इतना बड़ा हाथी है, इतना ताकतवर हाथी है, उसको अगर चाहे तो वो चेन 2 मिनट में तोड़ सकता है, उतना ताकत तो उसमें है, बट वो नहीं तोड़ता। क्यों? हाँ, बिकॉज उसको जब ये बांधा गया था चेन, जब वो छोटा बच्चा था, जब छोटा था, ताकत कम थी, तो चेन टूटती नहीं थी। उसने बहुत ट्राई किया, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, बट चेन नहीं टूटा। नाउ ही एक्सेप्टेड दैट कि ये नहीं टूट सकता। Very same thing has happened with the European society also. They accepted that whatever my religious teachers have told me, preachers have told me, that is right, and I have to follow it the fullest. Right? अभी जो ये एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, इंडिया का एग्जाम्पल लिया था, बस इसको हटा देते और इसकी जगह पे यूरोप लेके आते, तो सिंपल है, ये बन गया है यूरोप, अलग शेप का, सेम ही कंसेप्ट है। बस जिसको हम लोग जागीरदार राजा बोल रहे थे, उसको फ्यूडल लॉर्ड बोल दो, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को बिलोंग करता है। जिसको हम लोग इंडिया में ब्राह्मण, धर्मगुरु, राजगुरु बोलते हैं, उसको चेंज कर दो, उसकी जगह पे हम पोप या पैपल की बात करेंगे। पोप इज अ रिलीजियस हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, कैथलिक सिख का हेड है, और उसका जो ऑफिस होता है उसको पैपल बोला जाता है। तो लेट्स यूज द वर्ड फॉर आवर ओन पर्पस, हम लोगों को ज्यादा उसमें नहीं जाना है, बट यू कैन से people, these aristocrats, feudal lords and pope, they were there in the Europe. And that's why अगर आप देखोगे 17th century to 13th century Europe was very stagnant, no change was happening there, but because people mind were thoroughly overclouded by religious beliefs and ideas. Now ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके टॉपिक में दिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो nothing is my opinion here, try to understand. So that's why they called it this as a dark age. But इस dark age में अभी सवेरा होना शुरू हुआ है, and that's why the term is Renaissance. तो नई शुरुआत यहाँ पे हुई, न्यू बर्थ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कौन सी चीज हुई जिसके बिहाफ पे this Renaissance started happening in European society? उसके लिए we have to understand two important concepts here. These concepts are commercial revolution and scientific revolution. ठीक है? Now revolution is not all the time where something is खून बह रहा है, गोलियां चल रही है. That is not the meaning of revolution. Revolution is a complete change or great change in the existing society. इसको revolution बोला जाता है. तो ये जो commercial revolution हुआ या हम लोगों ने देखा scientific और revolution हुआ, ये दोनों भी चीजें एक दूसरे के साथ बहुत aligned है. They are connected to each other in a great way. Because of commercial revolution started, it created a demand for scientific development.
और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, इसकी वजह से लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड दैट सपोर्टेड द कमर्शियल रिवॉल्यूशन आल्सो। कैसे, उसकी बात करते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो 13th सेंचुरी से 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, टिल दैट टाइम यूरोप वाज हैविंग ट्रेड विथ इंडिया, चाइना, these parts of Asia. Most of the time they were actually importing from India and China because we were the producers of the greatest producers of that time. But बीच में क्या हुआ, they were using the land route, ठीक है। और ये लैंड रूट ऐसे आता था कि आज का जो टर्की है उसका जो कैपिटल है कौन सा, हाँ अच्छा, बट इकोनॉमिक कैपिटल बोलो चलो, इस्तांबुल, ठीक है। ये इस्तांबुल जो शहर है उसके आजू बाजू का जो एरिया होता था वहां से लैंड कनेक्टिविटी था। तो वहां पे कॉन्स्टेंटिनोपल करके नाम के पहला शहर राज हुआ करता था, वो उसके ऊपर अटैक हुआ, दैट वाज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ सम अदर पॉलिटिकल पावर। दे डिड नॉट अलाउ यूरोपियंस टू यूज नाउ दैट लैंड रूट। अभी यूरोपियन टेंशन में आ गए, जो ट्रेड चल रहा था सालों से hundreds of years that trade was happening, now that route has closed. Now what to do? तो उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ दोस्त बैठे थे, उस दोस्तों ने बोला कोलंबस कोलंबस छुट्टी है आई, चलो साया मुल्क ढूंढे भाई। ऐसे बोल के बहुत सारे लोग निकले, they started venturing into sea because land route has already closed. Technology is not yet reached to that level कि वो air route use कर सकते, so other options was available, that was sea route. Because insan was using these sea routes from the very beginning, but that people have a technology to build small ships that can travel into very near distance into the sea. But now you have to cross the oceans. Now that will need your technology. Navigation का technology लगेगा, बड़ा ship बनाने का technology लगेगा. Hence the demand for scientific revolution started creeping in. Because commercial revolution करना है. Now इस commercial revolution में क्या important था? Now a lot of people started to find different new sea route. तो कोलंबस निकला तो इंडिया ढूंढने, बट पहुंचा अमेरिका, तो अमेरिका मिल गया। नाउ जब पहले मिला, नाउ लॉट ऑफ यूरोपियन पावर स्टार्टेड गोइंग टू अमेरिकन लैंड फॉर इन द सर्च ऑफ न्यू मार्केट, न्यू कमोडिटी टू ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके लिए गए। अलॉन्ग विद दैट बाद में बहुत सारे लोग निकले इंडिया ढूंढने के लिए, तो उसमें से वास्को द गामा निकला। ही रीच टू इंडिया इन 1498 में पहुंचे, एंड देन उसका एक सिलसिला शुरू हुआ दैट इवन द पावर्स ऑफ यूरोप, मतलब जो पॉलिटिकल पावर्स थे, राजा महाराजा लोग थे, दे आल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग दीज एक्सपेडिशंस। बिकॉज ऑफ दिस न्यू वेज, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग। इसलिए जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट कंपनी, group of people came together to form this company and they were interested in trade with India. तो पहले इंग्लैंड के रानी ने बोला जाओ खुद का ट्रेड कर लो, and that was a private organization trying to deal with Indian trade. बाद में जाके वो एक पॉलिटिकल पावर बना था। Now because of what has happened, बहुत सारी चीजों का, नई नई चीजों का ट्रेड शुरू हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल, ये अगर आप देखोगे क्या दिख रहा है यहाँ पे, lot of different types of things that are being traded across even the western countries. तो यूरोप का ट्रेड पहले एशिया के साथ लैंड रूट से था ही, but when new sea routes opened, it also started its trade to American continent, which are, there is a large water body, Atlantic Ocean, that they were able to cross. और बहुत सारी चीजों का ट्रेड उसमें शुरू हुआ, जिसमें अगर देखेंगे तो फूड प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, इवन कॉटन, ये सारी चीजें। बट क्या मुझे कोई बता सकता है इसमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें जो ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट थी? कोई बता सकता है कौन सी थी वो? हाँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था तंबाकू, ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था स्लेव्स। तो अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स वो लेके जाते ना, स्लेव कहाँ से आएंगे? तो अफ्रीका वाज स्टिल अंडर डेवलप्ड एट दैट टाइम आल्सो, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल way of life was there. So these European powers with advanced arms and ammunition went there. They fought with tribal. जो हार गए उनको पकड़ के बंदी बना के लेके आए, and they sold them into the different parts. यूरोप में बेचा, अमेरिका में बेचा, because they were used as a labor force for the agricultural activity. Society was feudalistic in nature, right? So ये ट्रेड बहुत ज्यादा चला,
And because of this trade, now what has happened? These expansion of trade started happening. तो ये देखो, ये ऑलरेडी बात किया हम लोगों ने, क्या क्या हुआ, राइट? ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ? वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टू इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियल रिवोल्यूशन. नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मार्केट स्टार्टेड हैपनिंग. सो जो अर्लियर इकोनॉमी था, एज आई मेंशन, इट वाज अ फ्यूडल वे ऑफ लाइफ. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था और लोगों का ऐसा एटीट्यूड था कि जितना जिंदगी जीने के लिए लगता है उतना ही प्रोडक्शन करते. बट नाउ बिकॉज ऑफ कमर्शियल रिवोल्यूशन दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर बिकॉज दे गॉट नाउ न्यू मार्केट. तो सिर्फ अपने मार्केट का, अपने गांव का या अपने शहर का ना सोचते हुए दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी. ये मॉडल यहाँ पे आया, इसको याद रखना, यही बाद में आपको कैपिटलिज्म का कंसेप्ट के साथ कनेक्ट होगा, राइट? ना सोचो कि प्रॉफिट बेस्ड मतलब ऐसा कितना प्रॉफिट होता होगा उस जमाने में. तो इसका एक सिंपल स्टोरी ले लेते, राइट? So now for a discussion purpose, I will just try to create a story for you. I will be using some historical facts, but story will be bit of a fictional thing, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल सोचते कि वास्को द गामा निकला अपने घर से और बोला चलो इंडिया जाते. तो शिप्स लेके निकला अपने दोस्तों के साथ, राइट? तो यूरोप से बहुत सारी चीजें वो शिप में डाल के निकला और बोला कि इंडिया जाके बेचूंगा और इंडिया से कुछ चीजें खरीदूंगा जो वापस आके यूरोप में बेचूंगा. तो बहुत सारी चीजें लेके आया, इंडिया पहुंचा, इंडिया में उसने वो सारी चीजें बेची, उससे जो पैसे बने उससे उसने इंडिया में से कुछ चीजें खरीदी. प्राइमरीली स्पाइसेस खरीदी किया, जिसमें ब्लैक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता था पहले जमाने में. या कुछ कॉटन खरीदी किया, इंडियन कॉटन वाज वेल नोन एट दैट टाइम. सम हीरे जवाहरात ले लिए उसने बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर इट जेम्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द वेरी. तो थोड़ा थोड़ा चीज लेके गए. तो जाते हुए इतना भर के लेके आते, जाते समय इतना ही लेके गए. तो जाते जाते उसको दो दोस्त उसको बोल रहे थे वाइल ट्रैवलिंग बैक टू होम कि अरे आते समय तो हम लोग पूरा शिप भर के लेके आ रहे थे, अभी जाते हो थैली भर के लेके जा रहे. तो वहां पे जाके पोपट तो नहीं होगा, राइट? But when he reached back his home and he sold all whatever he bought from India, he earned profit into times of all his investment he has done into this voyage. तो खुश हो गया, बोला चलो एक बार उठ जाते हैं. And then he left for the another voyage to India. So he has done 2 voyages. So just try to understand, looking at his voyage, he also done it second time, but several other expedition also started, and the rulers of that country also started supporting this venture because they saw a huge profit margin into this trade. And this changed their orientation. Looking at the resources, they started thinking about profit whenever they started looking at the economy. Along with that, when people came here, for example, जब वास्को द गामा आया तो उसने थोड़ी ना सिर्फ बिजनेस किया, he also observed the Indian society. Like, चलो ऐसा सा एग्जांपल ले लेते. सपोज जब वास्को द गामा यहाँ पे आया होगा तो उसने देखा होगा कि अरे ये इंडियन लोग कुछ पूजा कर रहे हैं, ठीक है? वो आया होगा, किसी मंदिर में आरती चल रही होगी, देन उसको थोड़ा आश्चर्य लगा तो इवेंट एंड ट्राई टू सॉल्व इट, क्या आरती चल रही है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली. तो उसने पूछा किसी को कि भैया क्या चल रहा है. वो बोल रहे आरती. किसका? भगवान का. तो उसने देखा बहुत सारे लोग थे वहां पे, फोटो लगाता बड़ा. बोला कौन है भगवान इसमें? बोले सब भगवान है. फॉर एग्जाम्पल ये शंकर भगवान है, ये पार्वती माता है, ये गणपति उनके बेटे गणेश जी, ये उसके दूसरे बेटे कार्तिक. बोले अच्छा 4 भगवान है तुम्हारे. और ये कौन? ये बोले ये नंदी, इसको भी भगवान मानते हैं, इसकी भी करते. वो बोले ये भी भगवान, जानवर भी भगवान. ऐसे कैसे? हमारे यहाँ पे तो एक ही भगवान होता है, देयर इज ओनली वन गॉड. और वो भी पृथ्वी पे नहीं आता, हम लोगों को पता नहीं कैसे दिखना. उसने अपने बेटे को भेजा, सन ऑफ गॉड एज अ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज अ भगवान हमारे यहाँ पे. उन्हें बोला नहीं हमारे यहाँ पे होते. रुको देखो बाजू में दूसरा मंदिर है, वहां पे विष्णु जी का मंदिर है, वहां पे राम भी है, कृष्ण भी है, बहुत सारे. आप टेंशन मत लो, हम इंसान में भी भगवान देखते. अरे पैर मत रखो, वहां पे भी एक पत्थर है, उसको भी हम लोग भगवान मानते. तो कंफ्यूज हो गया, अरे ये कैसे हो रहा है? हमारे यहाँ पे तो अलग आइडिया है, आपके यहाँ पे तो अलग आइडिया. न्यू आइडिया गॉट इंट्रोड्यूस टू पीपल. उसने बोला कि ऐसे कैसे बोला कि इतने सारे भगवान होते हैं? दिखाओ मुझे, प्रूफ दिखाओ. कहाँ पे लिखा है, कौन से बुक में लिखा है? बोला बुक में. बोला हमारे यहाँ पे एक बुक होती है जिसको हम लोग होली बुक बोलते हैं,
इट कुड बी लेट्स से बाइबल और पुरानी बुक, दिस इज कंसिडर्ड एज होली बुक। तो उसमें लिखा है इसलिए हम लोग इस पे बिलीव करते हैं। तुम्हारी बुक कौन सी है? तो बोला इधर, उसने कबर्ड खोला, बहुत सारी बुक है भाई, पढ़ ले तू। गीता है, बुक की बात हो रही है, गीता है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, आप कोई भी पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं, इसमें सब में ज्ञान है। बिकॉज वी बिलीव इन डिफरेंट फिलोसॉफीज ना। ये तो वेदांता फिलोसॉफी हो गया, इसको छोड़ोगे तो सांख्य फिलोसॉफी है, मीमांसा फिलोसॉफी, उत्तर मीमांसा है, चार बहुत है, आपको जो अच्छा लगता है आप फॉलो करो, वी आर वेरी टॉलरेट। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, बट अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट होती है। तो बोला मतलब क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे एक रूल है कि 1/6 ऑफ योर इनकम शैल बी गिवन टू द चर्च, ये रूल है, बुक में लिखा है, एंड वी हैव टू गिव इट टू द चर्च। उन्होंने बोला ऐसा होता है? हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। तो बोला क्या बात करो, आपके लोग दान धर्म नहीं? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, दान धर्म तो हम लोग बहुत करते हैं, कुछ कुछ हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हो जिन्होंने पूरा दान धर्म कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सम्राट अशोक का एग्जाम्पल ले लो, या कर्ण का एग्जाम्पल ले लो फ्रॉम महाभारत, तो उसने तो खुद का कवच कुंडल भी निकाल के दे दिया। ऐसा 1/6 की क्या बात कर रहे हो? बट ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी को देना कंपलसरी नहीं है, जिसको अपनी इच्छा से देना है वो देना। He understood it कि religion can be flexible also. So introduction of new ideas, new cultural values. For example, उसने देखा कि अरे इनके पास तो बहुत सोना है, इंडियन लोगों के पास, मतलब सोना सारे बॉडी पार्ट्स पे पहन के घूम रहे, गले में भी डाला है, कान में भी डाला है, नाक में भी डाला है, कोई उंगली में डाल रहा है, पैर में डाल रहा है, बट पैर की तरफ देखा तो चप्पल नहीं पहना है उसने। एंड सम पीपल आर हाफ नेकेड, सिर्फ चड्डी पहन के घूम रहे। अभी वो तो मतलब वो तो सी वो से आया था, वो तो कोस्टल एरिया पे उतरा होगा, तो वहां पे तो गर्मी होती है ना भाई। तो आप भी नहीं क्या गोवा में जाते हो तो रिलैक्स ही तो होते हो। So it is very common that people living in the coastal area will use very less clothes on their body because it is warm in that area. Obviously, चप्पल भी नहीं पहनेंगे. That is not necessary in India, but it is very different in their part of the world. ना, they live in a very cold region, temperate region में रहते हैं. तो in general weather is cold, तो कपड़े आपको 2-3-4 कपड़े पहनने पड़ेंगे. शूज आप पहनोगे तो घर में भी पहनोगे because floor is very cold. Now he understood that there is something different here. And this difference he started understanding. They also started understanding that आज तक हम लोगों को चर्च ने जो बात बताई थी. Now, please understand here, church does not represent a place of worship in this discussion. Church represents religion as an organized form. Okay? Because we are talking about the time period or the area where we are talking about Europe. और जिन लोगों ने उसके बारे में लिखा तो वहां पे उन्होंने बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज द डोमिनेंट रिलीजन, दे लुक्ड एट अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ चर्च। तो इसलिए उन्होंने चर्च वर्ड किया, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे चर्च वर्ड यूज करें बिकॉज थिंकर्स हैज यूज्ड इट। तो उन्होंने बोला कि आज तक जो जो चर्च ने हम लोगों को बताया वो सारा सही नहीं है, बिकॉज व्हेन वी गो टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड people are still living life, they are prosperous, they are happy, but they are not following the way of life that has been prescribed by the church to us. So that does mean that it is not the thing that we shall be following the church in a blind manner. So power of church started getting shaken up. This started, or this increase happened along with the scientific revolution also. This process of challenging the power of church arrived with the scientific revolution also. Now, a scientific revolution का concept क्या है? तो as we mentioned, that society was existing before the 14th century also, but the source of knowledge was dominated by religion. ठीक है? कैसे? तो एक एग्जाम्पल लेते, राइट? तो पहले जो लोग आसमान देखते थे वो बोलते थे कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड पूरा यूनिवर्स अर्थ के सामने घूमता है। तो ये क्यों मनाया उन्होंने? तो उन्होंने सिंपल बोला, वो बैठा होगा किसी रात में बाहर आराम से, राइट, और बहुत टाइम बैठा होगा, चल रहा होगा कुछ का कुछ, एंड ही इज लुकिंग एट द स्काई एंड ही इज लुकिंग एट, अरे चांद यहाँ से आया, ऐसा आया, चला गया। दूसरे भी सारे बहुत ग्रह तारे आ रहे, यहाँ से आ रहे, वहां पे एवरी डे दैट इज हैपनिंग। तो उसको लगा आई एम सिटिंग एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड देन रिलीजन आल्सो सेड दैट बिकॉज गॉड इज लिविंग ऑन द अर्थ
and that's why all the universe revolve around the earth. So this is an explanation of something using a religion. But now अगर आप देखोगे तो आगे ये चैलेंज हुआ बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन. ना ये जो चैलेंज हुआ ये सिर्फ चैलेंज इसमें नहीं हुआ. इन द एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, ये विजुअल आर्ट में भी चैलेंज हुआ. ये आपको एजुकेशन सिस्टम में भी चैलेंज हुआ होता देखा. कैसे? तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं, राइट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट विजुअल आर्ट, पेंटिंग की बात करेंगे. मैं आपके सामने पेंटिंग प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है? तो प्लीज मीट माय डिफरेंट वर्जन, पेंटर शिवाजी काळे. ये अभी फ्रेम बना, राइट? आई विल बी मेकिंग अ पेंटिंग. ये एक पेंटिंग है, कोनी वेरी सिमिलर टू लाइक. भी मैं दिखाता हूँ, आपको झूठ लग रहा है. ऑलमोस्ट सेट. 100 नहीं, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन गलत है. हाँ हाँ, नहीं वो लियोनार्डो दा विंची का है तो वो खराब नहीं हो सकता. दैट इज वेरी गुड. ठीक है, इज वेरी वेरी फेमस पेंटर, राइट? तो ये जो ये वाला पेंटिंग है, ये कौन है? किसका पेंटिंग है भाई? मोनालिसा. तो ये है मोनालिसा, ठीक है? और ये है मोना, या तो एक है मोनालिसा और दूसरी वाली है मोना, राइट? तो प्लीज टेल मी why Mona Lisa is famous. Why the painting of Mona Lisa is famous painting? क्यों बताओ? Yes, because now there are several reasons for it, right? Some people, actually this is so famous painting that even today people do study this painting. लोग इसके ऊपर PhD करते हैं. This is so important painting फॉर द यूरोपियन सोसाइटी. तो उसके बहुत सारे रीजन लोग बताते हैं कि उसकी स्माइल को स्टडी करते हैं या उसके चेहरे का जो भाव है उसमें सारे भाव आपको दिखते हैं. अगर आप खुश हो तो वो आपको खुश दिखती है, अगर आप दुखी हो तो आपको दुखी दिखती है. एंड यू विल बिलीव मी, आज के दिनों में आपको ये स्टडी करने को मिलेगा 6 महीने में. तो कीप दिस पेंटिंग विथ यू, फोटोज का, राइट? बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी इज दैट दिस वॉज कंसिडर्ड एज the first human painting drawn by Leonardo da Vinci. ना इसको फर्स्ट ह्यूमन पेंटिंग बोला जाएगा क्या नहीं, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है. बट उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि अर्लियर ऑल्सो द पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमंस वेर ड्रॉन, बट दे वेर मोर रिलेटेड टू द ह्यूमंस हु माइट बी रिलेटेड टू रिलीजन. तो गॉड का पेंटिंग निकाला है, या इट इज रिलेटेड टू सम स्टोरीज ऑफ गॉड जिसमें कुछ डिपिक्शन किया है, और इट माइट बी रिलेटेड टू द किंग एंड हिज फैमिली, बिकॉज किंग इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. तो जो भी ये पेंटिंग होगा या लिखा जाएगा, जो स्टोरी बनाई जाएगी, सुनाई जाएगी, या कोई ड्रामा बनाया जाएगा, दोस्तों सब्जेक्ट शैल बी ऑलवेज रिलीजन और द किंग. आप इंडिया में भी देख सोचो तो पुराने जमाने में भी जो हमारे यहाँ पे लिखा गया, it was either related to religion or either related to king and his life. So that was the case. और ये क्यों था? Because लोगों को ऐसे बिलीव था, जो बताया गया था कि इसको छोड़ के आप कुछ नहीं करना चाहिए, because this is the supreme thing. But लियोनार्डो ने तो पिक्चर निकाल दी. इसमें जब पहली बार चित्र निकाला और उसको लोगों ने देखा तो लोग बोले, अरे तेरे हाथ में कीड़े पड़े, because you have done something which is not accepted by the law or norm or the religious practice. तेरा ब्रश में से रंग निकल जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें उसको बोली लोगों ने. बट एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2-4 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ. एंड देन पीपल स्टार्टेड चैलेंजिंग वॉट एवर चर्च हैज टोल्ड देम फॉर ऑल द पीरियड ऑफ टाइम कि अगर आप भगवान का गाना नहीं गाओगे, कुछ दूसरा गाना गाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. दे स्टार्टेड
challenging the hegemony of the church, not only in the visual form. तो अगर आप देखोगे, you'll find out that in different aspect of social life, they started challenging the hegemony of church as a religion. तो उसके बाद में भी बहुत सारे लोगों ने फिर पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया, and it also extended into medical science, biology, medical science. इसमें अगर आप देखोगे तो ये चित्र आप देखते हो, क्या दिख रहा है इस चित्र में आपको? इंसान है, उसका एनाटॉमी दिखाया है, बट अगर देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि गलत जगह पे दिखाया चीजें, राइट? तो देखो उसका हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन सब गलत गलत दिखाया जगह. Now, why was the reason? Because in the earlier period of time, it was a kind of a belief that human body shall not be tempered with. जैसा आपका बॉडी है, आपको आपका जीवन किसने दिया? God has given you a birth. तो जब आपको बर्थ मिला तो पूरा बॉडी मिला था, आप खा के पी के उसको बड़ा कर दिया. बट व्हेन यू हैव डाइंग, यू शैल रिटर्न योर बॉडी, वी से दिस इज गिवन बाय द गॉड. तो इसीलिए बॉडी को डिसेक्ट नहीं कर सकते. जैसे इंसान मरा है वैसे उसको इधर यू कैन बर्न हिम और यू कैन बरी हिम और हर. तो बॉडी डिसेक्ट करके नहीं देख सकते. तो हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन. तो लोगों ने अंदाजा लगा कि चीजें बनाई थी. नाउ यू टेल मी, इफ यू आर नॉट अलाउड टू स्टडी बॉडी, हाउ द मेडिकल साइंस विल एनरिच. दैट वाज अ प्रॉब्लम. बट देन लोगों ने शुरू कर दिया इसको पढ़ना. Then some people started studying body, different parts of the body, कैसे bones होते हैं, कैसे structure होता है, and then they started giving inputs to the in the medical sciences. तो medical science में मतलब scientific revolution की शुरुआत हुई. Now it also continued in other things also. For example, अगर हम लोग देखेंगे तो mathematics में along with that astrophysics में भी astrophysics में भी बहुत सारे changes हुए. जैसे कि हम लोगों ने बोला पहले concept था कि पृथ्वी के बाजू सारा यूनिवर्स घूमता है. नाउ इट वाज चैलेंज्ड बाय सेवरल स्कॉलर. फॉर एग्जांपल कोपरनिकस टू टिल द टाइम अगर आप देखोगे तो गैलीलियो तक इसको लेके जाते हैं, राइट? नाउ गैलीलियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एम्फसाइजिंग एम्पिरिसिज्म. उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद में आते हैं. बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिक्स में भी बहुत सारी चीजें लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. फॉर एग्जांपल न्यूटन became a very important scholar to talk about physics at that particular time. Now all these, whatever they try to study, what they have impacted on a major question, that what is the best way to study science. Science क्यों study किया जाता है? To get some knowledge. Because इंसानों को हमेशा question होते हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो उसको आंसर किसी ने करना चाहिए. तो क्वेश्चन इंसानों को पहले भी थे, बट रिलीजन वाज प्रोवाइडिंग आंसर्स टू ह्यूमन बीइंग्स. फॉर एग्जांपल अभी देखो बारिश का मौसम है, बट बारिश लेट हो गया ना इस साल बहुत. नाउ पीपल आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट, व्हाई रेन इज गेटिंग डिलेड. अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा तो यू गिव मी सेवरल रीजंस फॉर इट ना. यू विल से दैट सर मानसून लेट हुआ, उसके बाद में बीच में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ अरेबियन सी में, वो थोड़ा सा साइक्लोन वगैरह आया था. देन एल नीनो हो सकता है, ला नीनोस. यू विल बी गिविंग मी सेवरल साइंटिफिक रीजंस और साइंटिफिक नॉलेज यू हैव जनरेटेड अराउंड अ क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू एज ए ह्यूमन सोसाइटी. बट पहले जमाने में ये नहीं था. तो व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन पीपल वर गिविंग? कि वरुण देवता क्रोधित है, इंद्र देवता क्रोधित है, तो उनको खुश करना चाहिए. तो कैसे करेंगे? बेड़का बेड़की से लग्न लाऊं द्यायचं. You know it, na? At some place, this practice is still happening. If something is not happening, there is some explanation given to you that this shall be done. Yeah, if you find out a sick person, some person who is affected by leprosy or cancer or any, let's say, particular reason, तो पुराने जमाने में लोग क्या बोलते थे? यार इसके पाप है जिसकी उसको सजा मिल रही है. Nowadays people will be saying कि कौन सा वायरस है, बैक्टीरिया क्या अफेक्ट हुआ, क्या बॉडी अलग है. People will be trying to answer the same question but in a different way to how to generate a knowledge. ये जो approach था in the dark age that was highly dominated by religion, उसके dogmas, उसकी जो भी writings है, उससे ये knowledge base dominated था. It started changing because of the scientific revolution.
And people started asking. Now, when we are saying people, we are talking about a class of a people who are intellect of that time, Newton and Galileo. These people challenged this, and they simply asked that I will believe on that knowledge which only comes from my own sensory knowledges. So if you are saying that Earth के बाजू में पूरा यूनिवर्स रिवॉल्व करता है, तो show me, prove it to me. When I will see with my eyes, I will believe it. Otherwise, I will believe what my eyes are showing me. तो गैलीलियो बोला ये देखो, ये लगाओ टेलीस्कोप दूरबीन, उससे देखो आपको दिखेगा कि Earth is revolving around other thing. So I will not believe what is written in the book or some priest is telling me something. I will believe whatever are my senses are telling me. So if I touch it, I feel it, then I will believe it because that is my sensory knowledge, which is called as empiricism. Anubhavta janyata, anubhav janyata. Wow. If I experience it, if I learn it through my knowledge, sensory knowledge, worldly knowledge, and not otherworldly knowledge, then and then only I will believe in it. And that is from where we started that empiricism के ऊपर knowledge बनना शुरू हुआ. एंड उसके ऊपर फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रीजनिंग ढूंढना शुरू किया जिसके ऊपर थेरीज बनी. इसको बोला जाता है, दो टाइप से बनती है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग. नाउ इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ आवर स्टडी ड्यूरिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक इन आवर सिलेबस, जिसको हम वी विल टेक इट एट द लेटर पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन. इसमें आपको मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि आप किसी भी चीज को कैसे मानते हो. So in the inductive reasoning, you will first observe the thing, and if it is happening repeatedly, you will build a theory about it. In the deductive reasoning, you will say that I will first assume something that this is what is happening. Then you will test it, and if you find out that this is happening in the same manner every time, you will say that this is the fact that I am saying. Understood? But we will not go into the details of it. So this started happening in the area of knowledge, and then your way of thinking started changing. तो उसके लिए हम लोग फिलोसॉफी में अगर जाएंगे तो रेने डेस्कार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर. तो इतने सारे लोग हम लोगों ने देखे, ये सारे याद रखने के बिल्कुल नहीं, एक भी याद नहीं रखने का. वी हैव टू जस्ट रिमेंबर द थॉट दैट वाज ब्रॉट बाय. फॉर एग्जांपल रेने डेस्कार्ट ने कितना अच्छा लाइन लिखा है, देखो यहाँ पे, आई थिंक देयरफॉर आई एम. ठीक है, तो इज सिंपली सेइंग everything is challengeable, but my thought cannot be challengeable because I think, therefore I am. मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, इसलिए मैं हूं, मेरा अस्तित्व है. Otherwise, what will be difference between me and other non-living things? तो ऐसे नहीं है कि I am and that's why I am thinking. So it might be happening with other people also, other animal kingdom के एनिमल्स में भी होगा या नॉन लिविंग एंटिटी में भी होगा, बट दैट इज डिफरेंट इन मी. आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट और आई एम. ये थॉट रेने डेस्कार्ट ने अपने टाइम में बोला. ही वाज आल्सो मैथमेटिशियन एंड अ साइंटिफिक स्कॉलर, बट ही सक्सेडेड एज अ फिलोसोफर इन हिज टाइम पीरियड, एंड ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी. So along with philosophy, other natural sciences also evolved. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कहा कि फिजिक्स इवॉल्व हुआ, न्यूटन का एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, केमिस्ट्री इवॉल्व हुआ, बायोलॉजी भी इवॉल्व हुआ. तो बायोलॉजी का एप्लीकेशन इज मेडिकल साइंस. तो दीज नेचुरल साइंसेस आल्सो स्टार्टेड इवॉल्विंग, एंड along with these natural sciences we have found out that people's way of looking at society also started changing. Now how come? तो उसके रिलेटेड we will try to understand few more arguments. ओके, नाउ आगे आर्गुमेंट्स की तरफ जाते. अब सब लोग मोना को बाय करो. अरे सेम मोना को बाय. ठीक है, तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ. किस किस चीज में हुआ देखो, अपन इन विजुअल आर्ट, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एजुकेशन का भी बात है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन इंडियन सोसाइटी वेरी सेम थिंग वाज हैपनिंग, that education was limited only to few segments of the society, isn't it? So basically Brahmins and Kshatriyas को ही सिर्फ एजुकेशन मिलता था. It was not available to masses. क्योंकि इसका एक और भी रीजन था. एजुकेशन was
It was not written anywhere. People were knowing things, they were transferring their knowledge from one person to another person. तो मौखिक होता था बहुत सारी चीजें। और फिर चॉइस किसके ऊपर है? जिसके पास नॉलेज है वो डिसाइड करेगा ना किसको नॉलेज देना है। तो द्रोणाचार्य डिसाइड करेंगे भाई कर्ण को नॉलेज देना है नहीं देना है। तो किसी बुक में लिखा नहीं है ब्रह्मास्त्र का नॉलेज, तो कर्ण पढ़ भी नहीं सकता। नाउ दिस चेंज बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। सो नॉलेज which was there into some people in their mind, now people started putting it on the paper. पहले भी लिखते थे, but because of technological unavailability, it can be spread very little. तो बहुत ही सिंपल वाला कागज होता था या पेड़ के पत्तों पे लिखते थे। तो how much can it be duplicated? Very difficult to reach this knowledge to the masses. Printing press make this very possible, that the knowledge can be converted into a huge quantity and be spread across the masses. And इसीलिए जो आइडियाज है साइंटिफिक रिवोल्यूशन की जो आइडिया है जो अभी सिर्फ कुछ लोगों में है, द लेट्स से इंटेलेक्ट ऑफ देयर ओन फील्ड, तो बायोलॉजी फील्ड के होंगे, फिजिक्स फील्ड के होंगे, फिलोसॉफी के फील्ड के होंगे। नाउ इट आल्सो स्टार्टेड गेटिंग इनटू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, और जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट ही इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट वाज a consequence of period of Renaissance as well as period of Reformation. Now ये period of Reformation क्या है? इसका बेस हम लोगों को साइंटिफिक रिवोल्यूशन की बेस में मिलता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ देखो, people started thinking in a rational way, लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे थे, इंपेरिसिज्म की बात कर रहे थे, साइंटिफिक अप्रोच स्प्रेड हुआ और इमर्जेंस ऑफ नेचुरल साइंसेस हुआ। अंडरस्टूड? अब ये जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन सोसाइटी में आया, इट वाज फर्स्ट अफेक्टेड द रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड दैट्स व्हाई द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन स्टार्टेड इन द सोसाइटी। नाउ रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन की बात है। एम्पिरिसिज्म मीन्स अनुभवजन्यता, मतलब I will believe in something if I experience. तो गैलीलियो का एग्जांपल लिया ना कि मैं ये नहीं मानूंगा because it is written in the book that अर्थ के बाजू में सारा रिवॉल्व करता है। I will look through the telescope, अगर मुझे दिखता है तो मैं मानूंगा, नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं मानूंगा। That is empiricism. Understood? ये भी पॉइंट आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तब उसके ऊपर बहुत बात करेंगे। तो रिफॉर्मेशन का पीरियड शुरू हुआ, इट इज मोस्टली कनेक्टेड टू 15th सेंचुरी इन द यूरोपियन हिस्ट्री। तो 14th सेंचुरी में क्या हुआ? रेनेसांस हुआ, जिसमें कमर्शियल रिवोल्यूशन हुआ, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ। जब साइंटिफिक एटीट्यूड लोगों में आया, दैट साइंटिफिक एटीट्यूड फर्स्ट चैलेंज द एग्जिस्टिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉलेज, इट्स ट्रेडिशन, इट्स प्रैक्टिसेस एंड द ऑर्गेनाइज्ड वे इन विच इट इज ट्राइंग टू स्प्रेड। एंड दैट्स व्हाई अगर आप बोलोगे तो दिस रिफॉर्मेशन स्टार्टेड फ्रॉम विदिन द रिलीजन आल्सो इन द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि जैसे मैंने बोला इन द साइंटिफिक रिवोल्यूशन आल्सो और इन द कमर्शियल रिवोल्यूशन आल्सो ओनली द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ दैट सोशल ग्रुप गॉट दीज आइडियाज। तो रिलीजन में भी सेम हुआ। रिलीजन में जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, द प्रीस्ट और द रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ दैट रिलीजन, इन लोगों को ये आइडिया पहले कैच हुआ। और उन लोगों में 3 लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर किंग, जॉन केल्विन एंड जिंगविली। और उसी का चित्र यहाँ पे दिया है, इन 3 लोगों के यहाँ पे आपको चित्र दिया। नहीं, चित्र भी याद रखने का जरूरत नहीं, उनके नाम भी याद रखने का जरूरत नहीं है, बट वी विल रिमेम्बर वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट अबाउट इट। अगर आप मार्टिन लूथर को देखते हो यहाँ पे, तो इज फ्रॉम जर्मनी। अगर आप जॉन केल्विन को देखते हैं, इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, स्विस लैंड जिसको बोला जाता है। जिंगली इज आल्सो फ्रॉम स्विस। तो यूरोप की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो these were actually the religious preachers. ये खुद रिलीजन उन्होंने पढ़ा था, वो रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे। काइंड ऑफ आप बोलोगे कि काइंड ऑफ नॉट द सुप्रीम लीडर ऑफ रिलीजन, बट वो रिलीजन के ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छी तरीके से काम करते। एंड दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द absence of logic, rationality in the several religious practices that are being performed, right? तो आप बोलोगे कि कैसे कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल एक
आपके सामने एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। तो आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर बिल्ली ने आपका रास्ता काटा तो आप क्या करते? आप मतलब आप नहीं, आई नो यू पीपल आर वेरी वेरी साइंटिफिक इन नेचर, आप बिल्ली के ऊपर बैठ के घोड़ दौड़ भी लगा सकते, तो आपकी बात नहीं हो रही। आप मतलब इन जनरल पीपल इन द सोसाइटी व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं? रास्ता बदल देते, या या घर पे चले जाते हैं, कुछ तो ऐसे कर देते, राइट? So from where this practice has arisen? Okay, so now there is a very nice story about it. It's a folk story, मतलब सुनी सुनाई वाली कहानी है, बट आपको ये मिलेगी बहुत जगह। इट्स a यूरोपियन स्टोरी, राइट? तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि देयर वाज अ विलेज, उसमें एक घर हुआ करता था, एंड द पीपल वेयर दैट फैमिली वाज वेरी पुअर, राइट? तो एक बार वो फैमिली में दो जो मम्मी पापा बच्चे ऐसे रास्ते से चलते हुए जा रहे थे, और उनको एक छोटा सा बिल्ली दिखी। तो बच्चे थे, उन्होंने जिद कर ली कि इस बिल्ली को हम लोग घर लेके जाते हैं। तो मम्मी पापा बोल रहे थे, अरे नहीं नहीं, हम लोगों का खाने का प्रॉब्लम है, इसको क्या खिलाएं? तो बच्चे ने बोले, नहीं नहीं नहीं, हम लोगों के खाने में से इनको थोड़ा थोड़ा खाना देंगे, बट बहुत क्यूट है, इसको लेके जाते हैं, राइट? घर में जाके इंस्टाग्राम पे रील बना, नहीं ये वाला स्टेटमेंट खाते, बट इसको घर पे लेके जाते हैं, राइट? तो वो बच्चे हैं, तो मम्मी पापा ने जिद मान ली, उसको लेके घर आए ना। दे वर रियली पुअर, खाने का प्रॉब्लम था, फिर भी उन्होंने बिल्ली को पाला, अपने खाने में से उसको थोड़ा खाना दिया ना। बिल्ली बड़े बड़े जैसे जैसे बड़े होती गई, इनकी बरकत होना शुरू हो गई। दे स्टार्टेड बिकमिंग, उनका जो भी इकोनॉमिक हार्डशिप था वो चले गया। नाउ दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर प्रॉस्परस फैमिली। तो नेबर्स वो देख रहे, तो नेबर जो थी, उसने पानी भरते हुए उसको पूछ लिया, उसकी बीबी को, कि कैसे सब प्रॉब्लम सॉल्व। उसने बनाया, किसको मत बताना, सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, ये बिल्ली की वजह से हुआ। तो उसने बोला, हाँ ठीक है। वो अंडा लेके घर पे आ गई, अंडा पति के सर पे मारा, उसको बोले बिल्ली लेके आओ। वो बोले क्यों चाहिए बिल्ली? वो बोली बिल्ली लेके आओ, नहीं तो अंडा नहीं निकालो। वो बोला ठीक है लाते, बट रीजन तो बताओ। तो उसने बोली कि ऐसे ऐसे बिकॉज ऑफ दिस बिल्ली उनके यहाँ पे बरकत आई है। तो हस्बैंड बोला, यार अच्छी आइडिया, मैं भी बिल्ली लेके आता। वो भी लेके आया, उसके यहाँ पे भी बरकत आई। फिर सारे मोहल्ले ने बिल्ली ले ली, फिर सारे गांव में, फिर पूरे राज्य में सब लोग बिल्ली खरीद रहे हैं, बिकॉज उनके यहाँ पे ऐसा लॉजिक था कि बिल्ली अगर घर पे रखोगे तो बरकत आती है। ठीक है, अब आप जो सब लोग हंस रहे हैं, उनके घर में मनी प्लांट है ना, तो अभी हंस रहे हो तो। बट अब प्रॉब्लम क्या हुआ, लोग बिल्ली की तरफ देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारा सब ठीक से ठीक चल रहा है। अब जब आपका सब ठीक ही चल रहा है, तो आपको भगवान की याद तो आएगी नहीं, है कि नहीं? अभी आ रही है क्या भगवान की याद? नहीं ना। जैसे एग्जाम पास में आने दो, भगवान सबकी याद है। चतुश्रृंगी मंदिर के चक्करों के ऊपर चप्पल लगेंगे, ठीक है, कि देवी माँ तू ही है जो बचा सकती है, आर्ट एंड कल्चर से बचा, उतना नहीं करते। तो जब प्रॉब्लम में है तो भगवान की याद आती है, जब प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं आती। तो इसका मतलब क्या, द फुटफॉल एट चर्च रिड्यूस ड्रास्टिकली इन दैट एरिया। Now religious people, the organization people started getting worry about it कि अरे अपना तो कस्टमर बेस कम हो रहा है। Now what to do? Then they went to the king. उन्होंने बोला राजा राजा ये हो गया। तो बोला फिर मैं क्या करूँ, ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बोला अरे वैसे नहीं, तू दूर की सोच। If people stopped believing in us, what will happen to that divine theory of kinship? हमने ही तो सपोर्ट किया है ना तुम्हारे पोजीशन को। अगर आज हम लोग को नहीं मान रहे तो कल तुम्हें भी नहीं माने। राजा बोला इसमें पॉइंट है। तो राजा ने एक मिशन स्कीम अनाउंस किया, बिल्ली हटाओ स्कीम। तो सेनापति बोला नहीं महाराज, हटाओ नहीं, मारो, क्योंकि प्रॉब्लम को एक बार खत्म कर दे। राजा बोला सही है सेनापति, आदेश, सारी बिल्लियां मार। सेनापति लिखा, अपने सोल्जर्स लेके निकला ना, आदेश इज आदेश, ऑर्डर इज एन ऑर्डर। सो सारे सोल्जर्स बिल्लियों के पीछे भाग रहे, जो भी जहां पे भी बिल्ली दिखे मार दो। जो भी उसको अपने घर में रख दिया, बिल्ली को भी मारो, उसको भी मारो। जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, खाने खिला रहा है, जहां पे भी बिल्ली के साथ कोई भी इंसान दिखा उसको भी मारो। राज्यादेश है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, लोगों ने बिल्लियां छोड़ दी, कौन मरेगा बिल्ली के लिए? लेकिन क्या है, इंसान रास्ते से जा रहा है, किसी की बिल्ली रास्ते से जा रही है, उनको क्या लगा, जहां पे बिल्ली वहां पे सोल्जर उसको मारने आ रहे होंगे, तो अपना रास्ता बदलो, अलग रास्ते से चले जाओ। एंड द स्टोरी स्टार्टेड, राइट?
अब इसमें सच है नहीं है ये बात हम लोगों को नहीं पता. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे ये स्टोरी फैलने लगा. नाउ दिस इज अ वेरी इलॉजिकल थिंग, इजंट इट? राइट. नाउ ऐसे ही इलॉजिकल थिंग और एक था. Now this is from people's side. The people are not being rational, not being लॉजिकल थिंकिंग नहीं है उनके पास, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है. वैसे रिलीजन में ये एटीट्यूड नहीं था. फॉर एन एग्जांपल, at that particular time there was a system called as indulgence system in Europe. This is very simple system. इसमें मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान पाप करेगा तो there is a system in Christianity. If you have done something wrong, immoral, you have broken a law, so you will go to church and there will be a small cabin in which some person will be there. You will go and confess your crime, and that person who is sitting inside it is considered to be a person who has a knowledge of law, religious law, and that person will try to give you a solution कि तुम क्या क्या करो, आप कैसे इससे प्रायश्चित्त करो और अपने पाप से मुक्ति पाओ. ना उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, इवोल्यूशन लेके आए. एंड दे सेड इट कि वी विल ब्रिंग अ पास सिस्टम. पास लेके आए. तो आपने अगर कोई पाप किया है तो आप चर्च जाओगे और वहां पे आप बताओगे कि कितना कौन सा पाप किया है, एंड देन दे विल से कि इसका आपको 500 रुपए का चालान लगेगा. आप 500 रुपए का चालान काटोगे, आपका पाप कम हो जाएगा, आप घर जाओगे. आप बोल रहे हो कितना इलॉजिकल है कि नहीं? लेकिन आप भी तो वही करते हो. अरे आपको कोई बोलता है गंगा में जाके डुबकी लगाओ, पाप धुल जाएंगे. अरे जाते हो कि नहीं जाते? अगेन आप मतलब आप लोग नहीं, आप नहीं जाते, आप नहाते ही नहीं हो. गंगा में जाके नहाने का तो सवाल नहीं. रूम पे कोई नहाए क्या? वही टी शर्ट है, 7 दिन से वही चल रहा है. टी शर्ट स्मेल से पता चलता है कि कब बदलना है. नहाने का पैटर्न बट कंसेप्ट तो है ना भाई. इसीलिए तो कुंभ मेला जब लगता है तो करोड़ों में लोग आते हैं ना गंगा में डुबकी लगाने के लिए कि मैं डुबकी लगाऊंगा तो मेरे पास. वेरी सिमिलर टू दैट इन द अदर टाइम, इन द अदर सोसाइटी, indulgence system was become very famous. Now, because of which, what has happened, that church started accumulating huge amount of money. Now, Martin Luther King opposed this. उन्होंने बोला ये तो irrational है, ये तो illogical है. And he said, because being a religious part of that religious institution, he said that, or he opposed it. And like other people who were believing into the same idea, they opposed it. And he demanded that we shall bring reforms into Christianity. This is not the true Christianity that was supposed to be a true religion. आप लोगों ने उसको बदल दिया है, गलत कर दिया. इसमें रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा, धर्म सुधारना करनी पड़ेगी. Now, those who has designed this system, they expelled these people from the religion. Basically, Pope expelled Martin Luther King from the religion. Now, Pope is the supreme authority of the religion. उन्होंने expel कर दिया, मतलब आप चले गए. But now he had a very huge fan base because he also projected his idea in front of the masses, and masses were at the end of it. Now they have to pay the money. And that's why masses also started believing in his idea. This is a very illogical system. And then masses started supporting him. So then the society got divided into two groups, Christian society. Those who are protesting against it, those who are supporting it. Now Pope being the supreme leader of those who are supporting it, and these people, because they were not opposing Christianity, they were opposing the wrongs that are opposing in the Christianity, and that's why they were also religious people, but they were protesting against this point, and that's why they came to known as Protestants in the Europe. यहाँ से शुरू हुआ Protestant, became a separate sect within the Christianity, because they did not oppose Christianity. बोले Christianity सही है, but उसका interpretation आप लोग गलत कर रहे हो. Those people who believe in the older way of Christianity, उनको बोला गया Catholics, जिसके हेड रिलीजियस हेड है पोप, और जिन्होंने माना कि ये गलत है, इसमें चेंज लाने की जरूरत है, उनको बोला गया प्रोटेस्टेंट. And two different sects within the Christianity form Catholicism and Protestantism. Understood? Now, because of what has happened, now this type of thing created an intellectual foundation for the Europe that is going to be a modern Europe. तो यहाँ पे देखिए,
So it built the intellectual foundation for the Europe. Now human being and human society became the center of intellectual discussion. पहले नहीं था ना human being. याद करो मोनालिसा को. Earlier क्या था? God, king, they were at the center of the discussion. Now human became at the center of discussion. इसके बारे में बात करो, right? Pope and Church lost his hegemony because बहुत सारी चीजें बदल रही थी. It marked also the beginning of secularization because what has happened earlier, people believed in only one way of religious life. लेकिन अगर आप देखो वास्को द गामा इंडिया में आया, उसने देखा आइडियल वर्शिप भी होती है, मल्टीपल गॉड से, मल्टीपल बुक्स आर देयर, मल्टीपल एक्सप्लेनेशन टू सम पर्टिकुलर थिंग्स आर देयर. तो ऐसे नहीं कह सकते कि देयर इज ओनली वन वे ऑफ लाइफ एंड दैट इज द राइट वे ऑफ लाइफ. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर आर मल्टीपल वे अ पर्सन कैन let's say praise a god or practice his religion, but why it shall be a part of why it shall be a part of political process? Kyunki the way common people were dominated by the religion, the king or the political structure was also oversighted or always guided by, directed by the religion, and that's why political class also did not like this hegemony. Now because society is challenging religious hegemony, it political system also got a chance to challenge this hegemony, और इसको हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, right? And that's why this changes paved a way for the enlightenment. अरे समझ गए? तो enlightenment कब हो गया? अभी नेक्स्ट सेंचुरी में enlightenment का फेज आएगा, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था. ये टाइम पीरियड यहाँ पे. So today we talked about how European society began with the changes in the 14th century. New birth, rebirth European society का हुआ, जिसमें we have seen that commercial changes हुए society में, revolution की बात हुई, as well as scientific revolution की बात हम लोगों ने की. ठीक है? And then we started seeing that this is because of which they started challenging the hegemony of the religion. In the initial period of time, we started reformation within the religion started happening. This is a reformation within or of the religion happened during the 15th century. Now this too resulted into period of enlightenment, और enlightenment की वजह से दो important events European history has experienced. They are called as French Revolution and Industrial Revolution. तो ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो अभी हम लोग हमेशा भी ये प्रैक्टिस रखने की कोशिश करेंगे कि इन एवरी क्लास वी विल कीप 5 minutes or 10 minutes for the question answer session. So whatever we have studied, if there is any doubt with you people, you can ask the question about it, right? In which we will give preference to our ऑनलाइन स्टूडेंट फर्स्ट. तो टीम वासी है लोग, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स टीम ग्रह के जो वासी है, उनको हम लोग प्रेफरेंस देंगे. तो यू पीपल कैन यूज द चैट बॉक्स टू आस्क द क्वेश्चन, और ऑल्सो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन. ठीक है? Anybody in the class who has a question? ठीक है, अभी उसमें ऐसे करेंगे, देखो. Now you need not to go today and read about the different aspect in this topic, right? Because for the first few lecture, 2-3 लेक्चर आप सिर्फ समझ के ले लो चीजें. अगर आपको पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कहाँ से क्या पढ़ना है. बट इन फ्यू वीक्स इनिशियली ये टॉपिक जब तक खत्म नहीं होता है, just take your time to read the NCERT books that I have already suggested. It will create a foundation for whole sociology as a subject. तो उस पर थोड़ा फोकस करेंगे. इमरजेंस वाला टॉपिक थोड़ा सा आप बाद में भी पढ़ सकते हो. इट इज मोर रिलेटेड टू अंडरस्टैंड. हम लोग इसके ऊपर बहुत बात करेंगे, बट एग्जामिनेशन के लिए इसके लिए आपको 150 या 250 वर्ड्स ही लिख के आने के. तो दैट इज द वेटेज ऑफ द एग्जामिनेशन. बट इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीजें, and that's why we will spend a little time over here so as to
create a background for the thinkers that we are going to study after the 2 or 3 lectures over the period of time. ठीक है, अंडरस्टूड? तो यहीं पे रुक जाते हैं अभी. चलो, थैंक यू एवरीबॉडी.